welcome back to your accountancy lecture after vacation. I hope you all have enjoyed and did your work of holidays very accurately. Now let's start with the chapter 4, that is journal with the cash and credit transaction. Today I am going to teach you the concept of cash and credit transactions. Now let's start with the cash. Means if you have purchased or sold something on cash basis, means if you are purchasing something and you are making the payment of that in cash, that is your cash transaction. लेकिन अगर आप उनको कह रहे हो कि I will make you the payment after a few days, that is your credit transaction. It means you are not making the payment in cash on the spot. Clear? So that will be your credit transaction. Now let's start with the cash and credit transactions. I am going to teach you both the purchase on sales basis. First of all, when you have purchased, when it is written that purchased goods for rupees 3500 in cash, if it is specifically written in cash, it means you have purchased those commodities in cash, means you have made the payment in cash. Clear? So here you are, first of all, do this thing that it is written over here goods. The word goods is written here. You are not supposed to make the transactions an entry for such transactions with the word goods. ठीक है, आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे? अगर आपने परचेज की हैं तो you will write purchases in on the place of goods, और अगर आपने सेल्स की हैं you will write sales in place of the goods, because in our accounting terminologies we are not going to write the word goods, because goods जो हैं इसमें बहुत से miscellaneous types of goods are there जो कि mixture nature के होते हैं और उनको किसी particular account में नहीं डाला जा सकता. Clear? Now let's start. When you purchase the goods for rupees 3500 in cash, now it is specifically written in cash. It is related with goods. It means here you are following the rule of real account. Real account का क्या rule है? Debit what comes in एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ये आपने गोल्डन रूल्स कर लिए हुए हैं. ठीक है. सो हेयर व्हाट इज कमिंग इन? गुड्स आर कमिंग इन एंड व्हाट इज गोइंग आउट? कैश इज गोइंग आउट. ठीक है. तो यू विल नॉट राइट गुड्स हेयर, यू विल राइट इंस्टेड ऑफ गुड्स परचेजेस. ठीक है. एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट. क्लियर? अगर इसकी जगह पे होता कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगर गुड्स परचेज की जगह पे, यहाँ पे मैं सेल्स की एंट्री बता रही हूँ सेम वे में, अगर आपने गुड्स सेल की होती साथ में लिखा होता इन कैश, तो एंट्री विल बी बिकॉज जब आप सेल करते हो तो आपको पैसा मिलता है. ठीक है. तो डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश इज कमिंग इन, सो कैश इज टू बी डेबिटेड. ठीक है. व्हाट इज गोइंग आउट? What is going out? Goods are going out. You will not write goods in your entries. ठीक है. तो आप goods की जगह पे क्या लिखोगे यहाँ पे? Sales, because you are making sales. Clear? तो here you are going to write the narration being goods purchased for cash. ठीक है. यहाँ पे आप लिखोगे being goods sold. Clear? इस तरह से. बाकी क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. नेक्स्ट है एंट्री. अगर सिंपल वर्ड्स यही लिखा हो कि परचेज्ड गुड्स, सिंपल ये लिखा है परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 3500, ये नहीं लिखा कि इन कैश ऑन क्रेडिट, कुछ नहीं लिखा, तो आप इसको क्या एज्यूम करोगे कि गुड्स आर परचेज्ड ऑन कैश, किसको? कैश में ही परचेज किया है. एंट्री विल बी सेम, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. सेम सेल्स में होगा कि अगर सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 3500, इट मीन्स कुछ भी नहीं लिखा तो यू विल एज्यूम इट ऑन इन कैश. ठीक है. तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, सेम एंट्री विल बी पास. क्लियर? नेक्स्ट थर्ड कंसेप्ट है कि अगर एंट्री आप ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 3500 फ्रॉम समीर. ठीक है. अगर सिर्फ नेम लिखा है तो आप इसको क्या एज्यूम करोगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बिकॉज इसमें नेम आ गया है. ठीक है. अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आप उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन एज्यूम करोगे. अगर नेम लिखा है तो यू विल एज्यूम इट एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. क्लियर? एंट्री विल बी व्हाट इज कमिंग इन? गुड्स आर कमिंग इन, सो एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड व्हाट इज गोइंग आउट? नथिंग इज गोइंग आउट बिकॉज इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन.
ठीक है, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे आपने कुछ भी पे नहीं किया, आपके लिए वो पर्सन आपका क्या बन गया, क्रेडिटर। तो यहाँ पे सप्लायर का नेम आ जाएगा। इट मीन्स टू समीर कि वो मेरा क्रेडिटर बन गया, वो मेरी लाइबिलिटी है, मैं उसको लेटर ऑन पे करूँगा। ठीक है, सेम इज़ द केस विद द सेल। अगर आपने गुड्स सेल की हैं फॉर ₹3500, ठीक है, तो अगर आपने गुड्स सेल की हैं टू समीर, सपोज आपने समीर को सेल की हैं, तो उस केस में समीर आपका क्या बन गया, डेटर। तो एंट्री विल बी समीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, क्योंकि समीर डेटर बन गया। इट मीन्स कैश की जगह पे आपके सप्लायर और आपके कस्टमर का नेम आ जाएगा इन केस ऑफ परचेज एंड सेल ट्रांजैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इस तरह से भी आ सकती है कि परचेज्ड गुड्स फॉर ₹3500, ये सेम ही रहेगी, परचेज गुड्स फॉर ₹3500 फ्रॉम समीर। अगर लिखा स्पेसिफिकली इन कैश, अगर ये नेम लिखने के बाद इन कैश भी लिख दिया है तो आप क्या अज्यूम करोगे इसको कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो आपको समीर से कुछ लेना देना नहीं है। एंट्री सेम रहेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कि आपने गुड्स परचेज किए कैश में। क्लियर। अगर आपने उसने स्पेसिफिकली इसमें लिख दिया है कि परचेज गुड्स फॉर ₹3500 फ्रॉम समीर ऑन क्रेडिट, अगर इन कैश या ऑन क्रेडिट स्पेसिफिकली लिखा है देन यू हैव टू गो अकॉर्डिंगली। अगर इन कैश लिखा है तो आप एंट्री करोगे परचेजेस टू कैश, अगर ऑन क्रेडिट लिखा है तो आप एंट्री करोगे परचेजेस टू समीर। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा तब आप इसको क्रेडिट ही एज्यूम करोगे क्योंकि नेम दिया है। ठीक है, और अगर नेम भी नहीं दिया है फिर ये कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगी। इज़ दैट क्लियर। आफ्टर दैट अगर आपको लिख के दिया हुआ है कि परचेज्ड गुड्स फॉर ₹3500 ऑन क्रेडिट, मतलब कोई नेम नहीं दिया, अब आप क्या करोगे, नेम तो दिया नहीं, ठीक है, तो पर ये पर्सन जिसका नेम दिया होता है वो हमारा क्या होता है, सप्लायर होता है, और सेल के केस में वो हमारा कस्टमर होता है। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, परचेजेस के केस में एंट्री पास करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। कैश तो हम कर नहीं सकते बिकॉज कैश इज़ नॉट गोइंग आउट, इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो हम लोग यहाँ पे उस सप्लायर का नेम लिख देंगे। क्लियर, उसको क्रेडिटर बना देंगे अपना। और अगर सेल्स की बात हो, सिंपल लिखा हो सोल्ड गुड्स फॉर ₹3500 ऑन क्रेडिट, तब एंट्री क्या बनेगी, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तब आप कस्टमर्स को डेबिट कर दोगे और टू सेल्स, क्योंकि गुड्स तो गई हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डेबिट कैश तो आपके पास आया नहीं सेल के केस में, तो नहीं आया तो आपका कस्टमर तो डेटर बन गया ना, वो पैसा तो देगा ही आपको, चाहे लेटर ऑन देगा। ठीक है, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर। Now let's start with illustration 6. Purchased goods for ₹3500 in cash. Now it is written in cash, so it means it is a cash transaction. You will write purchases account debit to cash. Debit what comes in, credit what goes out. Clear? Next है purchased goods for 30,000. साथ में कुछ भी नहीं लिखा, तो इट मीन्स यू विल एज्यूम दैट इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट है परचेजेज गुड्स फॉर ₹25,000 इन कैश फ्रॉम करणवीर। कैश में परचेज किया है, स्पेसिफिकली लिखा है कैश, अगर स्पेसिफिकली लिखा है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही चलोगे, तो कैश लिखा है तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, एंट्री बनी परचेजेज टू कैश। नेक्स्ट है परचेजेज गुड्स फॉर 21,000 फ्रॉम करमजीत ऑन क्रेडिट, अब स्पेसिफिकली लिखा है ऑन क्रेडिट, तो एंट्री बनी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू करमजीत। नेक्स्ट है परचेजेज गुड्स फॉर ₹20,000 फ्रॉम केवल, अब नेम दे दिया है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, एंट्री बनेगी परचेजेज टू केबल। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर 18,000 ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में परचेज किया, एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, अब नेम नहीं दिया है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो मैं क्या करूं, सप्लायर क्रेडिट कर दूंगी। नेक्स्ट है कैश परचेजेस, एंट्री बनी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश विद ₹15,000। तो रजे ये फॉलो अप 6 है, डू इट योरसेल्फ। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, बैक क्वेश्चंस आर आल्सो गिविंग, उनको भी सॉल्व करो और साइड बाय साइड अपनी क्वेरीज जो है वो सॉल्व करते जाना। तो रजे हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं बिकॉज इट इज़ द बेसिक चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। अगर जर्नल आपको प्रॉपरली आती है तो यू कैन डू योर वर्क एक्यूरेटली, तो इसीलिए मैंने आज सिर्फ नटशेल में आपको कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन दी है। जस्ट गो थ्रू दीज एंड आस्क इन केस ऑफ एनी क्वेरीज। थैंक यू।